Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. But you can see this over here. We have right now this paper. Sorry for the disturbance. Right now we have this paper, Winter 2022. Right, we need to solve this paper, and I already told you in the previous paper कि भाई अब के paper 1 hour and 30 minutes का नहीं होगा. अब के जो paper आएगा वो आएगा 1 hour and 45 minutes का. तो मैं दोबारा आपको ये बता देता हूँ कि अब जो आपका पेपर आएगा वो आएगा 1 hour and 45 minutes. सर वो 80 मार्क्स का होगा, सेक्शन होगा. जी बेटा. सर IGCSE का तो 1 hour 15 minutes ही होगा ना? देखें, अभी वो नेक्स्ट क्लास में हमें IGCSE करना है तो हम वहां पर IGCSE की बात करेंगे. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 5070 GCE. So you can be here for the informations, but if you talk about the paper pattern and the rest of the things about IGCSE, we will discuss this. जी बेटे. ओके सर. सर ये सेम रहेगा या ये IGCSE की तरह सेम है ना? बेटे देखो, सिलेबस हमारा सेम है, क्वेश्चंस का इंटेंसिटी सेम हो सकता है, बट कभी कभार टाइमिंग का इशू आ जाता है और कभी कभार और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि चेंज हो सकती हैं. वी विल डिस्कस दैट ऑन मंडे इंशाल्लाह. ठीक है, मंडे को जी हम IGCSE का पास पेपर करते हैं और फ्राइडे को हम GCE का करते हैं. तो अभी हमें सिर्फ GCE के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है. So here it is, one of the paper, you can see this 1 hour and 30 minutes, and I am telling you that बच्चों this time अब ये जो आपका नया वाला पेपर आएगा वो आएगा 1 hour and 45 minutes का. ठीक है ना. You can see this over here, it is 75 marks. अब जो आपका पेपर आएगा वो 80 marks का आएगा. Here we have 2 sections, and in the section B we have a choice of 3 questions, but up this time you won't have this choice in the coming paper. We just have one section and we need to answer all the questions over there. Right, so here we have question number 1. You can see this is all the time the part of the paper. ये हमेशा यही question पहला question होता है paper 2 का आपके पास. And you can see this, ये question क्या कह रहा है आपके पास. The diagram shows the part of the periodic table, or answer the following question using only the symbols of the element in the diagram. Each symbol may be used once, more than once, or not at all. इनमें से जो symbols दिए गए हैं तो एक बार भी यूज हो सकते हैं, एक से ज्यादा बार भी यूज हो सकते हैं, और ऐसा भी होगा कि कोई सिंबल ऐसा होगा जो एक बार भी यूज ना हो. Again, so this is a very simple question. You can see this बच्चों is a catalyst used in Haber process. तो कौन बच्चा मुझे इसका जवाब देने वाला है? Iron sir. Iron sir. Absolutely right. Iron is one of the element which can be used as a catalyst in Haber's process. Very good, bachcho. And what about the element in Aluminium. Aluminium sir. in contact process, bachcho? I'm not asking about the B part. अच्छा वो vanadium peroxide. Vanadium sir. Yes. Then if we talk about the B part, so is used to make food containers because of the Aluminium. Absolutely right. Aluminum is resistant to corrosion, so it can be used to form food containers. Very good. और अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं which gas is a food preservative, तो क्या बोलोगे? Food preservative gas कौन सी होती है? Sulfur dioxide. sir. Sulfur dioxide. Very good. You need to keep remember this information as well. Very good. It's about 1% by volume of dry air. Argon. हमारे पास तो नो नाइट्रोजन बेटे 78% होती है, नाइट्रोजन आपके पास 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और जो रिमेनिंग 1% होता है उसमें मेनली आर्गन गैस होती है. पूरी की पूरी नहीं होती लेकिन मेनली आर्गन गैस होती है. Is extracted from hematite ore. बच्चों क्या Iron. hematite? Iron. And what about the bauxite ore? Aluminium. sir. Very good. Or what is the formula of hematite ore? You need to keep remember it is Fe2O3. And if you talk about the bauxite ore, so the formula of bauxite ore Al2O3. Very good. Perfect. अच्छा, हेमाटाइट ओर में से जब हम आयरन निकालते हैं तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? रिड्यूस्ड बाय कार्बन और इलेक्ट्रोलिसिस? Reduced by carbon. वेरी गुड. बट अगर हम बॉक्साइड ओर में से एल्युमिनियम निकाल रहे हैं, Electrolysis sir. Molten electrolysis. molten oxides. Very good. बच्चों, why we are using molten electrolysis for aluminum oxide? Because Ions are free to move. Ions No. will be free to move. No. Aluminum is more reactive than carbon. That is why we are using electrolysis to extract that, right? Okay, then last part is form an ions with a charge of -2. Oxygen. आपके पास ग्रुप 6 में ये दिखा रहे हैं आपको कि एक ही एलिमेंट है, तो ये -2 होगा, ये -1 होगा, ये -3 होगा.
ये +1, ये +2 और ये +3 होगा। तो आप देख सकते हैं ग्रुप 6 में हमारे पास एक ही एलिमेंट ये दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर ऑक्सीजन होने वाला है। वेरी गुड एवरी वन ऑफ यू। दैन द नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग the structure is about halogen and halogen compounds. Draw a dot and cross diagram to show the arrangement of electrons in a chlorine molecule. अगर आपको याद हो तो समर के अंदर भी ऐसी सवाल आया था जो हमने किया था, लेकिन वो क्लोरीन और आयोडीन के दरमियान मॉलिक्यूल हमने बनाया था। इट इज द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी हमने वही मॉलिक्यूल बनाना है, बट दिस टाइम बोथ ऑफ द एटम्स आर पार्ट ऑफ क्लोरीन। सो यू कैन से दैट chlorine has 7 electrons in the outermost shell, 1 2 3 4 5 6 7, and the second chlorine atom also having 7 electrons in the outermost shell. So this would be the dot and cross diagram of the molecule of chlorine, and you can see this, they are saying to draw the outer shell electrons. तो मैंने सिर्फ आउटर शेल बनाए हैं, इनर शेल नहीं बनाए हैं। ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू। जी सर। सर Yes, समय sir. क्वेश्चन था। जी सर। जी बेटा पूछिए। सर ये जो बीच वाला हमारा जो शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, वो तो मिडिल में नहीं आएंगे? एक ही बात है बेटे, मैंने मिडिल में ही बनाया है। आप बिल्कुल इसको अगर आप चाहें तो यहाँ बना लें, ऐसे बना लें, मर्जी है आपकी। एक ही बात ओके सर, गॉट इट। अच्छा देखिए, नाउ दे आर आस्किंग फॉर स्टेट वन यूज ऑफ क्लोरीन। दे आर आस्किंग फॉर वन यूज ऑफ क्लोरीन। अब देखें, आपसे वो ब्रोमीन का यूज नहीं पूछ रहा, आपसे वो आयोडीन का यूज नहीं पूछ रहा, वो आपसे एस्टाटीन का यूज नहीं पूछ रहा, वो आपसे फ्लोरीन का यूज नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है क्लोरीन का यूज। तो आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सर क्या हैलोजेंस के यूजेस हमारे सिलेबस में मौजूद हैं? नहीं, हैलोजेंस के यूजेस हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है, बट इफ यू रिमेंबर तो वाटर ट्रीटमेंट में आपको याद होगा कि आपने क्लोरीन यूज की थी to kill the bacteria, right? To kill the germs, Yes, sir. right? तो ये वहां से रिलेट किया गया है, ठीक है ना? तो हैलोजेंस के यूजेस नहीं है, बट killing bacteria in the treatment of domestic water we use chlorine, वहां से इसको यूज किया गया है। So you need to keep remember, yes, in the water treatment. All right? All right sir. You can say that it is Okay, sir. used in water treatment, or you can say that it is used to kill bacteria present in the water. Right, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Chlorine reacts with aqueous potassium bromide। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है और ये बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। सो कीप रिमेंबर दिस केमिकल प्रॉपर्टी विद यू कि भाई ये आएगी ही आएगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हैलोजेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको अपने साथ हमेशा तैयार रखना है, ठीक है? तो भाई आपको याद रखना है ऑल द टाइम जो आपके पास हाईली रिएक्टिव हैलोजन होता है वो हमेशा क्या करता है, लेस रिएक्टिव हैलोजन को क्या कर देता है, Displace. ठीक है ना? वो हमेशा क्या कर देता है, हाईली रिएक्टिव हैलोजन लेस रिएक्टिव हैलोजन को हमेशा डिस्प्लेस कर देता है। दे आर आस्किंग स्टेट द कलर ऑफ ब्रोमीन। ओह माय गॉड, एक्वस ब्रोमीन किस कलर की होती है? Orange brown. Orange brown. Orange brown। देखिए वो क्या बोल रहा है, वो सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड नहीं बोल रहा। ब्रोमीन लिक्विड की बात करेंगे आप, ब्रोमीन लिक्विड की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं रेडिश ब्राउन। राइट नाउ दे आर टॉकिंग ब्राउन। एक्वस ब्रोमीन, यस। तो आप इसको बोल सकते हैं ब्राउन, या इससे ज्यादा अच्छा अल्फाज आप इसको बोल सकते हैं ऑरेंज। राइट? ओके। Then explain using ideas about reactivity of halogens why aqueous bromine does not react with aqueous potassium chloride. Aqueous potassium chloride के अंदर अगर आप ब्रोमीन डालेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? Because you can say that chlorine is more reactive than bromine. Chlorine is more reactive than bromine. All right, बच्चों, you can say this. ओके सर। सर लेकिन क्या कहते हैं, गैस ब्रोमीन का कौन सा कलर होता है फिर? गैशियस ब्रोमीन नहीं, गैशियस ब्रोमीन तो ब्राउन होती है, ठीक है ना? अगर आपके पास होती लिक्विड ब्रोमीन तो आप उसको बोलते हैं रेडिश ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन टाइप होती है वो। और अगर आप ब्रोमीन गैस की बात करते तो ये सिर्फ ब्राउन होती है, ठीक है? क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, तो इस वजह से वो ऑरेंज कलर जो है लाइट होकर ब्राउन की तरफ चला जाता है, ठीक है? ठीक है सर, ओके। Then bromine is a liquid at room temperature. Describe the arrangement and separation of the particles in the liquid. They are asking about arrangement. भाई liquid के अंदर arrangement कैसी होती है बच्चों? It is Sir, regular Random arrangement. नहीं नहीं नहीं, liquid में regular नहीं होती बेटे, solid Random में arrangement. yes, you can say that it is random, और आप कह सकते हैं कि it is like not in order, right? And they talk about Yes, sir. separation. If you talk about separation, so you need to keep remember that particles are close together.
they are close together, they are touching together. So this is what the separation of particles. All right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Then sir. here they are saying CFCs, chlorofluorocarbons, are atmospheric pollutants which deplete the ozone layer. Explain the importance of the ozone layer. Describe one problem caused by the depletion of ozone layer. भाई अगर आप importance की बात करते हैं तो ये जो है आपके पास अल्ट्रावायलेट रेस को यहाँ हमारी वर्ल्ड तक आने तक रोकती है. हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको हम तक आने तक रोकती है. ठीक है ना. You can say that its importance is reduces the UV lights radiation, UV light radiations reaching us. हार्मफुल जो होती है ना उनको रोकता है. ठीक है भाई. और इसका प्रॉब्लम क्या होता है भाई? प्रॉब्लम सिंपल सा ये है कि अगर वो पहुंच गई तो स्किन कैंसर कॉज करती है. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. ये हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी. राइट. Then here we have question number 3, which is about organic chemistry. So it's simple. We talk about this already. The alkanes are homologous series of hydrocarbons. Give the journal formula of alkanes. क्या formula होता है alkanes का बच्चों? CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Very good. And you can see this. They are asking for the name of this alkane. 1, 2, 3, 4 carbons. What is the name of this Butane. बच्चों? Butane. This Butane. is butane. Very good. And they are asking draw the structure of different isomer of this alkane. Show all the atoms and all the bonds. Again, I am telling you all the atoms and all the bonds का लफ्ज आपके displayed भी यूज हो सकता है. तो आपने ये याद रखना है. इसके लिए रेडी रहना है. और आपने करना क्या होता है आइसोमर बनाने के लिए जो लास्ट वाला कार्बन होता है उसको आप कहीं मिडिल में लगा देते हो. तो 1, 2, 3 कार्बन के बीच में आपने यहाँ लगा दिया एक और कार्बन. तो ये बन गया आपके पास क्या बच्चों? ये बन गया आपके पास आइसोमर. और ये कहलाता है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. क्या कहलाता है बच्चों? ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. ब्रांच स्ट्रक्चर. ब्रांच स्ट्रक्चर को पहचानने का एक और आसान तरीका क्या हो सकता है? एक और आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी फिंगर यूज कर सकते हैं. और फिंगर से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों. मैं किस तरह इसको आमतौर पे यूज करता हूँ? मैं आमतौर पे इसको इस तरह से यूज करता हूँ. देखें. इफ यू जस्ट पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट कार्बन and you just move from first to the last carbon without putting up your finger, it means it is a unbranched structure. अगर आप पहले कार्बन से आखिरी कार्बन तक विदाउट पुटिंग अप योर फिंगर चले गए इसका मतलब ये है कि दिस इज अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर. और अगर आप पहले कार्बन से आखिरी कार्बन तक ना जा पाए और आपको फिंगर उठानी ही पड़ी तो इसका मतलब दिस इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर. ऑलराइट. So this is branched structure and this is unbranched structure they gave us. So they are isomers of each other, right? They are isomers of each other. And the C part is saying that the fractional distillation of petroleum crude oil produce fractions containing alkanes and different chain lengths. Separation by fractional distillation depends on the physical property of the fractions. Name the physical property. बच्चों किस Boiling physical point? property? Boiling point, sir. Boiling point के ऊपर आपके पास ये depend करता है. So you can say that very good. The boiling point is one of the physical property on which fractional distillation works. Very good, every one of you. Then they are saying naphtha is the one of the fractions separated from petroleum. State the main use of naphtha. Naphtha क्यों use होता है? It is used Road to make. making. Chemical feedstock. हाँ, yes, it is used to make chemicals. आसान अल्फाजों में कहेंगे तो आप कह सकते हैं it is used to making chemicals. It is used to make chemicals, right? सर ये हमने अभी तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या ये क्या कहते हैं नहीं की ना? Yes, absolutely. I need to teach you this. और वो संडे की क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे. All right. जी सर. Then larger alkanes molecules are cracked to form a smaller alkane molecule, and this is one of the process or one of the you can say that technique by which you can form alkenes. They are asking explain the importance of cracking larger alkanes into smaller alkanes. Sir, they can be used for multiple For processes. commercial use. Yes, आपको याद रखना है कि भाई ये जो होते हैं आपके पास शॉर्टर, आपको याद रखना है शॉर्टर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, शॉर्टर चेन फ्रैक्शंस जो होते हैं उनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है. जैसे अगर आप देखें तो पेट्रोल हम लोग ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू डीजल, क्योंकि कार्स ज्यादा यूज होती हैं, ट्रक्स कम यूज होते हैं, लॉरीज कम यूज होती हैं. तो जो ऑक्टेन है उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है ना, तो इसलिए हमें क्रैकिंग करना पड़ती है. तो यू कैन से दैट what is the importance of this? You can say that shorter hydrocarbons are more useful so to complete the demand of the market. Shorter
hydrocarbons are more useful. So to complete the demand of market, we do what? Cracking. All right, बच्चों. And if we talk about the conditions of this, so remember cracking यानी कि तोड़ने के लिए high temperature required होता है. High और pressure. हाई टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? वो हाई टेम्परेचर होता है 550 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. और कैटलिस्ट आप कह सकते हैं, या कैटलिस्ट के अलावा आप कह सकते हैं हाई प्रेशर. इन तीनों में से कोई सी भी दो कंडीशंस आप यूज कर सकते हैं. ऑलराइट बच्चों. सर ये प्रेशर और टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं करना होता? देखो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा आपको. ठीक है. अगर स्पेसिफाइड करना है तो आप नाम भी लिख सकते हो, उसका भी नंबर मिल जाएगा. ये आप आईजीसीएसई में भी स्पेसिफाई नहीं करना होता? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है कंडीशन पूछ रहा है. ठीक है. Then alkanes reacts with chlorine in the presence of ultraviolet lights to form compounds that contain carbon, hydrogen and chlorines. वो आपसे कह रहा है कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला निकाल दो, और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हमारे लिए दाएं हाथ का खेल है. वी ऑल नो दैट कि हमें क्या करना है. सबसे पहले तो एलिमेंट्स लिखने हैं, उनकी परसेंटेजेस लिखनी है. इट इज 37.8%, दिस इज 6.3%, दिस इज 55.9%. और हमें पता है पहले स्टेप में हम क्या करते हैं. पहले स्टेप में डिवाइड बाय देयर एटॉमिक मास. ये 12 है, ये 1 है, ये सॉरी ये क्लोरीन है, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया. तो ये क्लोरीन है आपके पास, तो ये 35.5 है. तो जरा देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं बच्चों. इट इज 37.8 डिवाइड बाय 12. तो ये कितना हो गया आपके पास? 3.15. एब्सोल्युटली राइट. दूसरा वाला यही रहेगा 6.30, and the last walla would be 55.9 divided by 35.5. It would give you 1.57. और सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, जो स्मॉलेस्ट होता है उसको सबसे डिवाइड करा देते हैं. तो इफ वी डिवाइडेड बाय 1.57, 1.57, 1.57, so let's see what are the answers. ये हो गया आपके पास 1. then 6.30 divided by 1.57, it gives 4.0 somewhere. तो भाई पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा तो आप राउंड फिगर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. 3.15 डिवाइड बाय 1.57, तो इसका आंसर है 2.00. तो आप इसको राउंड फिगर कर सकते हैं. तो द एम्पिरिकल फार्मूला बिकम कार्बन 2 है आपके पास, हाइड्रोजन 4 है आपके पास, क्लोरीन 1 है. ऑलराइट बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. C2H4Cl. Right, so we can move towards the next question, which is question number 4. The question is about ammonium sulfate. Ammonium sulfate is a fertilizer. Explain why farmers put fertilizers on soils where crops are grown. Why we use fertilizer, bachcho? Simple Reduce as this. acidity. So to grow the yield. Yes, to improve crops. You can say that, to improve crop yield. अगर हम crops की productivity बढ़ाना चाहते हैं तो हम fertilizers डालते हैं. Right. Explain why farmers do not add calcium hydroxide to the soil immediately after adding ammonium sulfate. आपको याद Sir, होगा? because the ammonia gas release because of the process of neutralization. Yes, you can say that ammonia is produced and it is going to be escaped from the you can say that from the fertilizer, yeah, from the soil, right? So ammonia would be produced. या आपको एक नंबर मिलेगा, would be produced and escape from the soil. और इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कम हो जाएगा, और नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाएगा तो भाई फर्टिलाइजर काम कैसे करेगा. ठीक है. देन कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट. और ये भी हम इस स्किल टेस्ट में कर चुके हैं. कैसे कर सकते हैं? द नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दिस, यू कैन सी दिस, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, तो 14 × 2. और टोटल एमआर कितना होगा इसका? भाई टोटल एमआर आप निकाल सकते हैं. इसका टोटल एमआर कैसे निकलेगा? अमोनियम होता है 14 + 4, 14 + 4, or because we have 2 molecules of ammonium into 2, plus sulfur is 32 and oxygen is 16 × 4, 64. तो ये हो गया टोटल, और and then we need to multiply it with 100, so it would give you somewhere 21.21
First round. All right, bachcho. Then they are asking for the reaction. You can see this ammonium salts when reacting with sodium hydroxide or any alkali. They will always form what? Ammonia, water, and salt. Salt कौन सा बनेगा भाई? देखें सोडियम रह गया सर अमोनियम सल्फेट ये बनेगा सोडियम सल्फेट बेटे ठीक है और अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आसान तरीका बैलेंस करने का ये होता है कि आप देखें कितने अमोनियम है आपके पास 2 अमोनियम्स हैं आपके पास जितने अमोनियम्स होंगे उतनी ही अमोनिया बनेगी उतना ही वाटर बनेगा ठीक है भाई सर ये मुझे 4 का बी पार्ट नहीं 4 का बी पार्ट समझ में नहीं आया देखो अगर आपने अमोनियम सल्फेट डाला है व्हिच इज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सर बी पार्ट बी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बी पार्ट जी सर बी फॉर बॉल बी तो समझा रहा हूँ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आपने डाला है ठीक है ना और आप फिर एल्कली डाल रहे हो अगर आप उसकी पीएच को जो है इंक्रीज करने के लिए एल्कली डाल रहे हो और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आपने डाला हुआ है तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हमने क्यों डाला है हमने इसलिए डाला है कि वो नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड करे क्रॉप्स को और हमारी क्रॉप्स को बेहतर करे ठीक है ना अब जब ये दोनों हम एक साथ डाल देंगे तो देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन दीज टू आपको याद होगा मैंने ये आपको ड्यूरिंग द लेक्चर भी बताई थी बात जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज हो जाएगा जब नाइट्रोजन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज हो जाएगा तो फिर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर किस काम का बचा मामला ही खत्म हो गया ना उसका ओके सर ठीक है समझ आ गई then here Yes, we have another you can say that part over here they are saying ammonium sulfate decomposes when heated the reaction is endothermic this is the main thing you need to see this कि यार ये वो बगैर आपको एक हिंट दिए काम नहीं होगा वो हिंट देंगे आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यू कैन सी दिस 2 मार्क्स के लिए वो आपसे क्या पूछ रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एंथैल्पी चेंज ये दो चीजें आपसे वो पूछ रहा है भाई तो ये दो चीजें आपने प्रॉपर्ली बनानी है तो ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट ऊपर होता है ठीक है ना सो यू कैन से दैट कि अमोनिया लिखना चाहें सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वाटर अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं और अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट भी लिखना चाहें तो भी चलेगा और यहाँ पर अगर आप रिएक्टेंट लिखना चाहें तो भी चलेगा और अगर आप अमोनियम सल्फेट लिखना चाहें तो भी चलेगा ठीक है ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट चल जाएगा इन दोनों को हमने इस तरह से मिला दिया दे आर आस्किंग फॉर एंथैल्पी चेंज तो एंथैल्पी चेंज होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक and it is positive because the product is upward so this is enthalpy change ये मिल गया आपको 2 marks all right Yes, sir. जी अब सर उसने ओके एक्टिवेशन एनर्जी बोली ही नहीं है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है कैटालाइज रिएक्शन उसने बोला ही नहीं है आपको बनाने की जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की जरूरत ही नहीं है जब उसने आपसे पूछा ही नहीं ठीक है तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5 द क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड मेटल कंपाउंड्स and zinc reacts with aqueous copper sulfate again copper ion sorry so this is again the reactivity series you need to keep remember that highly reactive metals can always displace the less reactive metal from their aqueous salts so the same thing over here zinc is more reactive so it can displace copper from the copper salt right so explain why the reaction involves both oxidation and reduction they are asking about oxidation and reduction so you can say that zinc loses loses electrons while which is oxidation you can say that which is oxidation while copper ion gain electrons right which is reduction right बच्चों Yes, sir. Yes, sir. बात आपने लिखनी है तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे ऑलराइट देन दे आर सेइंग अच्छा वो हाफ इक्वेशन भी अगर आपसे पूछे तो आपको वो भी आनी चाहिए तो हाफ इक्वेशन बनाना देखो कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए आप देख सकते हो जिंक पहले एलिमेंट था अब ये आयन बन गया है सॉल्ट बन गया है पहले ऐसे था अब ऐसे बन गया है तो आयोनिक इक्वेशन लिखने के लिए बिकॉज इट इज द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स तभी ये जिंक आयन बन सकता है कॉपर पहले आयन की फॉर्म में मौजूद था यू कैन सी दिस और अब क्या बन गया है वो कॉपर मेटल बन गया है कैसे बन गया होगा भाई बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आप इस तरह भी लिख सकते हो हाफ इक्वेशंस इसकी अगर वो आपसे कहे or because it is a metal so you can write solid because it is a salt you can write aqueous it is salt so you can write aqueous and now this is metal so you can write solid वो आपसे ऑब्जर्वेशन भी पूछ सकता है इसकी तो आपको पता होना चाहिए कॉपर मेटल जो होता है पिंक सॉलिड होता है हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था so you can say that pink solid appears और कॉपर आयंस का जो 2+ का जो सॉल्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है तो आप ये भी बोल सकते हो ब्लू सॉल्यूशन फेड्स
तो ये ऑब्जर्वेशन भी वो अक्सर और बेशतर पेपर में पूछता है, तो यू नीड टू कीप रिमेंबर दीस थिंग्स एज वेल विद दिस इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। देन aqueous ammonia is added to the aqueous zinc ion study. Describe the observation when a few drops of aqueous ammonia is added. We know that White aqueous precipitates ammonia White precipitate. yes ammonium हो चाहे White zinc हो, precipitate. white precipitates बनेंगे, absolutely right every one of you। और अगर आप उसको एक्सेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? Soluble, sir. solution. soluble in Soluble. excess, soluble in excess, और आप बोल सकते हो colorless solution। very good, soluble in excess या Sir. precipitate dissolve, या आप बोल सकते हो colorless solution form। जी बेटे, सर कॉपर कंपाउंड में क्या कलर देता है? कंपाउंड्स में ब्लू कलर देता है अगर 2+ का चार्ज। ओके सर। ठीक है, सॉल्यूशन भी ब्लू होगा अगर पानी में सॉल्युबल हो जाएगा तो, सही है। राइट सर। देन molten zinc chloride, oh my god, molten zinc, molten का मतलब है काम आसान है हमारा, ठीक है ना। तो molten zinc chloride conducts electricity, they are asking predict the product at anode and cathode when molten zinc chloride is electrolyzed। molten में भाई एक ही है बस, zinc आयंस हैं और chloride आयंस हैं, तो क्लोरीन एनोड पे चला जाएगा, zinc कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे। तो zinc would be at cathode, chlorine would be at anode, right बच्चों? Yes, sir. यस इसमें तो सर। मेहनत करनी है ना, Yes, sir. पूछ लिया हमसे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखते हो तो चलेगा, लेकिन सिर्फ Cl नहीं लिखना, फिर आपने Cl2 लिखना पड़ेगा, और जिंक में सिर्फ Cl चलेगा क्योंकि ये एलिमेंट मेटल है, चलेगा। ध्यान देखिए ये सवाल दोबारा आ गया, मैं इसको आपको कितनी मर्तबा सिखा चुका हूँ और ये सवाल दोबारा आ गया है। They are asking in terms of structure and bonding why zinc chloride has a high melting point. We know that zinc chloride is metal. Chloride, it is ionic compound. Ionic compounds have giant ionic lattice with a strong electrostatic force of attraction between the ions. तो ये बात अगर आप लिखते हैं तो काम बन सकता है। You can say that zinc chloride is a giant ionic lattice. It is a giant ionic lattice with strong electrostatic force of attraction. With strong electrostatic force of attraction, और इसके आगे लिखना जरूरी है, force of attraction between ions. Therefore, it requires greater energy to overcome. All right बच्चों, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आनी चाहिए। मैंने आपको ये अपने प्री मॉक्स के अंदर भी दिया, ये मैंने आपको आयनिक बॉन्डिंग में भी सिखाया, ये मैंने आपको पिछले पेपर में भी करके दिखाया, ये मैंने आपको अभी भी करके दिखाया, और जब हम आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तब भी हमने ये किया था, राइट बच्चों? Right, sir. Yes, sir. Yes, Then sir. aluminum is extracted from its ore by electrolysis. State why aluminum is extracted by electrolysis and not by reduction with carbon. इत्तेफाक से यही सर हाईली सवाल रिएक्टिव देन कार्बन। Reactive than carbon. जब More हम reactive क्वेश्चन than नंबर carbon. 1 कर रहे थे तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था और मैंने इसका जवाब भी दिया था, बिकॉज इट इज क्या बोलोगे बच्चों? More reactive than carbon. More reactive than द मोर carbon. रिएक्टिव देन कार्बन। Reactive. Yeah. You can say that it is higher than carbon in reactivity series, right बच्चों? Yes. यस सर। Yes, sir. ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाते वक्त बताया था, ठीक है ना, इत्तेफाक से उसी में आ भी गया ये सवाल। State one property of aluminum which makes it suitable for the construction of aircraft. Lightweight. Less than. एस डेंसिटी। Yes, low density. Low density, हमने ये uses of metals में लिखा था, ठीक है। State one advantage of recycling metals such as aluminum and copper. It is just to conserve the ore. आपकी जो ores हैं वो सेव हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे, सही है भाई? सर ये भी तो लिख सकते हैं कि ये सर। पोल्यूशन You can say that कि ये पॉल्यूशन से बचने के लिए भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास हो सकता है बच्चों, आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपको मिनरल्स जो है उनको सेव करने के लिए भी हो सकता है, ये भी आप कह सकते हैं, राइट? Right, sir. चलें, अब क्वेश्चन नंबर आ गया है 6। अब सेक्शन बी को आपने देखना नहीं है, ये जो लिखा हुआ है आंसर 3 क्वेश्चंस, अब ये हमारे सिलेबस में फर्दर नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम जस्ट स्ट्रेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन इज अबाउट नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द एयर एंड वाटर एंड फर्टिलाइजर्स चैप्टर। स्टेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय एयर, बाय व्हाट? 78%।
8%. 78, sir. नहीं 70 78%. बच्चों ये बहुत बेसिक चीज है, याद करनी है आपने. Then the equation represents the equilibrium between nitrogen and oxygen at high temperature in a closed container. Predict what happened to the position of equilibrium when the pressure is increased. Pressure increase करते हैं तो reaction कहाँ जाता है बच्चों? Towards Sir, less right number hand of low. Less gaseous mole. less gaseous number of moles. And what about this equation बच्चों? इस equation में No. कहाँ जाएगा? No change. Stable. Sir, no change. No effect. And what is the reason behind this? Gaseous Number moles of are equal moles in Sir, number. same numbers of moles. Equal number of moles of gases on both sides. Very good बच्चों, very good, very good. ये चैप्टर आप लोगों ने बड़े घोल के पी लिया है माशाल्लाह, जबरदस्त. वेरी गुड. किसने पढ़ाया आपको ये चैप्टर यार? आप लोगों को कितना अच्छा आ गया ये चैप्टर. चलें. The table shows the concentration of nitrogen monoxide in the closed container through different temperatures. You can see this temperature 800 था तो concentration ये थी, 1000 हो गया तो ये बन गई, 1200 हो गया तो इतनी concentration बन गई. ये क्या चीज बता रही है आपको बच्चों? Exothermic. Yes, ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि if you are increasing the temperature so the concentration of nitrogen monoxide increases. यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो उसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को फेवर कर रहा है. तो बताओ जरा ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है बच्चों? Endothermic reaction. Endothermic, sir. कैसी होती है बच्चों? plus Sir, positive, sir. Yes. So it should be positive. It should be positive. तो आपको यहाँ क्या लिखना है बच्चों? आपने यहाँ लिखना है enthalpy change positive, right? Right, sir. सर ये और दोबारा एक्सप्लेन कर दें. देखो बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो और प्रोडक्ट बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हाई टेम्परेचर को फेवर कर रहा है, और हाई टेम्परेचर को फेवर करता है तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. तो आप कह सकते हैं द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर को फेवर करता है ना? यस बेटे, ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या देंगे? बिकॉज देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO या प्रोडक्ट एट हायर टेम्परेचर, राइट? Higher concentration of NO at higher temperature, right बच्चों? Right, sir. Yes, sir. Then they are Right. saying construct the equation for this reaction. Nitrogen monoxide reacts with hydrogen to produce ammonia. अब देखो उसने खुद बता दिया है आपको. अब ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखनी है. वो कह रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है, NO रिएक्ट कर रही है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास बन रहा है अमोनिया और वाटर. तो वो आपको खुद ही बता रहा है ना प्रोडक्ट. तो ऐसी इक्वेशंस, ऐसे रिएक्शंस जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो इस तरह देता है फिर हमें, ठीक है. तो आप इसको जस्ट आप इक्वेशन लिखोगे, करेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, एक नंबर मिल जाएगा, बैलेंस करोगे दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना. तो पहले ऑड नंबर को इवन कर लो. इसको मैंने कर लिया इवन पहले, तो ये हो गया 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3 2 जा 6. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यहाँ हमने 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा. ये काम हो गया हमारा पूरा, ठीक है भाई. तो सर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा? हाइड्रोजन रह गया बैलेंस होना. क्या कह रहे हो बेटे? सर मैं कह रही हूँ अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो मार्क नहीं मिलेगा हमें. बेटा 2 मार्क्स का है ना, तो 1 मार्क करेक्ट प्रोडक्ट का है, 1 मार्क बैलेंस. सर मुझे बैलेंस करने में बड़ा मसला होता है, होती ही नहीं है बैलेंस. कोई मसला नहीं बेटे, आप हमेशा याद रखें पहले ऑड नंबर को इवन करना है आपने. देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 लगाया है, तो ये हो गया हाइड्रोजन क्या 2:2 3 6 हो गया. कितना हो गया हाइड्रोजन? 2 3 जा 6, ठीक है. 6 हाइड्रोजन हो गए. तो मैंने जो है अभी हाइड्रोजन के बाद पहले मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया. 2 नाइट्रोजन है, मैंने 2 लगा दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. अब आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए, तो मैंने यहाँ 2 लगा लिया, तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो गए. अब बचा क्या? सिर्फ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन आखिरी में मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अकेला है, रिएक्टेंट साइड पर वो अकेला है, तो मैं उसको आखिरी में इजीली बैलेंस कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं होगी मुझे, ठीक है. यू कैन सी दिस 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, 6 यहाँ हो गया, 10 हो गया, तो मैं यहाँ 5 लिख के आराम से हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकता हूँ. तो जो भी चीज अकेली हो ना उसको आखिरी में छोड़ दो, उसको आखिरी में बैलेंस कर लो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है. और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप मुझे कर दीजिएगा. मैं आपको कुछ क्वेश्चन तो इंशाल्लाह आप बैलेंस कर पाएंगे फिर.
Nitrogen oxides are pollutant in the atmosphere. State one source of nitrogen oxide in the atmosphere. क्या होता है source? से बता दो. Lightning. प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Lighting in the sky भी बोल सकते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं? कार exhaust fumes, right? कार exhaust fumes. अच्छा देखो, लाइटिंग जो है आपके पास एक नेचुरल सोर्स है, तो उसकी बात ना करें, आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें जो हमारी वजह से क्रिएट हो रही है. ठीक है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स contributes to acid rain. State one other effects. One effect of acid rain on buildings. Oh, what is the effect? It damages. Sir, what? buildings made of डैमेजेस मार्बल. फेल कर देती है. Yes, you can say that. ये आपके पास मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग्स को डैमेज करती है. So you can say that it corrodes the marble buildings. तो उसको आप क्या बोलते हो? कोरोजन बोलते हो. क्या बोलते हो उसको आप? कोरोजन बोलते हो, या आप उसको क्या बोल सकते हो? एरोजन भी बोल सकते हो, केमिकल एरोजन भी बोल सकते हो. ठीक है ना. तो अगर आप केमिकल जो मार्बल चिप्स की बनी हुई बिल्डिंग होती हैं उनको एसिड रेन खराब करता है, तो उसको आप कोरोड कह सकते हैं. कोरोड द मार्बल चिप्स बिल्डिंग्स. Right, then state the formula of the ion that is present in all acids. बच्चों कौन सा Positive. H positive ion. Absolutely perfect. Very good. Then the next question is question number 7 over here. They are saying deduce the molecular formula of the compound. Molecular formula क्या होता है? Formula which tells you the exact number of each element, right? So you can see this: एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो ये होगा चार कार्बन. देन हाइड्रोजन देख लेते हैं. एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 हाइड्रोजन हो गए आपके पास. देन ऑक्सीजन देख लेते हैं. एक, दो, तीन, चार, 5 ऑक्सीजन हो गए. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Then they are saying propanoic acid reacting with methanol form an ester. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो भाई, हमेशा पहले तो एस्टर बना लो, उसका लिंकेज बना लो पहले. ठीक है ना. ये एस्टर लिंकेज हो गया. प्रोपेनोइक एसिड पहले आएगा, तो 3 कार्बन है, तो एक ऑलरेडी आप बना चुके हैं, 2 और बना दो. मिथानॉल अल्कोहल है, बाद में आएगा, तो इसका एक ही कार्बन है, ये बाद में बना दो. फिर इनके हाइड्रोजन्स बैलेंस कर दो. ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? नाम लिखते वक्त पहले अल्कोहल लिखा जाता है, तो मिथाइल Propanoid. क्या नाम हो गया इसका? Methyl propanoic. मिथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम हो गया है. और ये हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, so don't worry about that. We are going to review this soon in upcoming classes, right? State one use of ester बच्चों, क्योंकि ये बहुत वाले होते हैं, so you can say that they can be used in perfumes, all right? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज होते हैं क्रोमेटोग्राफी में, तो you can save in that as well. Ethanoic acid can be produced by the bacterial oxidation of ethanol. Give one other method of oxidizing ethanol to produce ethanoic acid. Ethanoic acid बनाने के लिए आप ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं किसकी? इथेनॉल की. तो वो कह रहा है give oxidizing ethanol. तो आप क्या कह सकते हो भाई? आप इसमें कह सकते हो you can oxidize ethanol can be oxidized in the presence of acidified potassium magnate 7 लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना ना भूलिएगा प्लीज. ठीक है. Then here we have the simplest structure of dicarboxylic acid as monomer and diamine monomer are shown. They are asking 2 repeat units आपने बनाने हैं, और all the atoms and all the bonds should be shown. अच्छा देखिए भाई, आपको हमेशा याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपना OH प्रोवाइड करता है, हमेशा वो अपना OH प्रोवाइड करेगा. तो बचा क्या आपके पास? ये पार्ट. ठीक है ना. इसको आप अपने पास लिख लें. ठीक है. और आपने हमेशा याद रखना है अमाइन और अल्कोहल हमेशा अपना H प्रोवाइड करते हैं. तो ये गया, तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ ये पार्ट. ये कलरलेस बॉक्स है, ये याद रखिएगा. तो ये बचा. ठीक है ना. ये हो गया एक रिपीट यूनिट, क्योंकि वो बोल रहा है 2 रिपीट यूनिट, तो इसको 2 बार बना दीजिए. ये एक कलर्ड वाला डब्बा आ गया आपके पास विद C डबल बॉन्ड, और एक कलरलेस वाला डब्बा आ गया आपके पास विद NH ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. ये हो गया आपके पास. इसके बाद आपने इसको कनेक्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा एमाइड लिंकेज. तो ये बन गया आपके पास एमाइड लिंकेज, एंड दिस इज द कंटिन्यूटी बॉन्ड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलीमर्स, राइट बच्चों? Right, sir. Right, Yes, sir. sir.
Then they are saying state the meaning of the term condensation in condensation polymerization. So you can That gives figure out water what acids is condensation product. polymerization. Removal of water. Yes, elimination of small Removal of molecule. जरूरी नहीं है पानी का ही मॉलिक्यूल रिमूव हो, कभी कभार HCl भी होता है, but you can say that water आप कह सकते हैं, ठीक है ना. Joining of two compounds with elimination of a small molecule. Joining of two monomers या two compounds भी बोल सकते हैं, two monomers with elimination of small molecules, right? Then proteins have amide linkages. Protein are hydrolyzed using dilute acids, यानी कि तोड़ देते हैं उनको हम. Name the type of compounds produced. भाई प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, तो प्रोटीन को तोड़ दोगे तो वापस से क्या बन जाएगा आपके पास? अमीनो एसिड. ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. चलें तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हो तो सिंपल शुगर्स बनती है, ये भी याद रखना है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हियर हमारे पास आ जाता है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन. दे आर सेइंग दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड मेटल कंपाउंड्स. डिस्क्राइब विद द एड ऑफ लेवल डायग्राम द स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग इन मेटल्स. तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा से हम इसको बना लेते हैं बच्चों. हमेशा सेम साइज के एटम्स आपने बनाने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है, ये एलॉय नहीं है, तो एक जैसे एटम्स आपने बनाने होंगे. और उसके बाद आपने इनके अंदर उनका क्या दिखाना होगा? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने होंगे इनके साथ कि भाई इसका ये रहा, 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 इस तरह करके आप दिखा सकते हो, ठीक है ना. साथ साथ इसको पॉजिटिव आयन दिखा सकते हो, अगर आप चाहो किसी एक को लिख सकते हो दिस इज पॉजिटिव आयन, ताकि आपको डिस्क्राइब करने में आसानी हो. और इसको लिख सकते हो दिस इज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद क्या डेफिनेशन लिखोगे बच्चों? यू कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों बिटवीन Positive ions and negative Positive ions Positive ion. electrons. yes positive Positive ions ion. and delocalized electrons. Very good बच्चों, very good. delocalized electrons और positive ions के दरमियान जो electrostatic force of attraction होती है उसको हम metallic bonding कहते हैं. Absolutely perfect. Now they are saying the table shows the reactivity of four metals with cold water with steam and put the four metals in order of increasing reactivity. अच्छा ये reactivity सीरीज में हमेशा increasing देख लेना भाई, हमेशा इसकी वजह से हम फंस जाते हैं. So cerium, it is a slow reaction with cold water. तो ये काफी रिएक्टिव नहीं होगा. देखो कोल्ड वाटर के साथ हाईली फास्ट रिएक्शन किसका है? रुबीडियम का. तो ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव हुआ, राइट और नॉट? Yes, sir. तो ये आ गया रुबीडियम हाईली रिएक्टिव, ठीक है. और आप देखें उसके बाद स्लो रिएक्शन कौन कर रहा है? सीरियम कर रहा है. तो ये आ Sir, गया उसके बाद सीरियम आएगा आई थिंक. यस सीरियम आ गया आपके पास, ठीक है ना. अब आप देखें उसके बाद आपके पास Sir, zinc. कह रहा है तो ये दोनों Zinc. रिएक्शन ही नहीं कर रहे, तो इनको देखना पड़ेगा. यहाँ पर आप देखें जिंक फास्ट रिएक्शन कर रहा है स्टील के साथ और यहाँ कर रहा है स्लो रिएक्शन. तो ये आ गया आपके पास जिंक और ये आ गया आपके पास निकल. ऑलराइट बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Then C part में कह रहा है the full symbol of an ion of the cerium is shown. Define number of electrons. देखो ये प्रोटॉन नंबर है और 55. क्योंकि प्लस 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो 58 minus 3 55. And they are asking for the neutrons. तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो तो 140 minus 58 would give you 82. Alright बच्चों. Then Yes, sir. zinc reacts with aqueous silver nitrate to produce aqueous zinc nitrate and silver. Construct the ionic equation. क्या लिखनी है आपने भाई? ionic equation लिखनी है. तो एक बार जरा मैं फुल इक्वेशन लिख लूं. जिंक डाला है आपने किसमें बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट में. सिल्वर नाइट्रेट क्योंकि सॉल्युबल है, सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस मौजूद होंगे, ठीक है ना. इसके बाद क्या बन गया आपके पास? जिंक नाइट्रेट बन गया है, यानी कि दो नाइट्रेट के आयंस हो गए होंगे और एक जिंक आयन होगा और सिल्वर बाहर चला गया है. फॉर द बैलेंसिंग यू कैन राइट 2 over here और 2 सिल्वर है तो 2 नाइट्रेट होंगे. तो भाई स्पेक्टेटर आयंस कौन से हुए आपके पास? नाइट्रेट आयंस. तो Nitrate. इन आप काट दीजिए. बचा क्या आपके पास? जिंक यू आर एडिंग इन सिल्वर सॉल्ट. आपके पास क्या बन रहा है? उसके बाद जिंक का सॉल्ट और सिल्वर मेटल. क्योंकि आपके पास जिंक एक मेटल है सो इट शुड बी सॉलिड. ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है. एक नंबर करेक्ट
आपके पास इक्वेशन का आपको मिलेगा, दूसरा नंबर आपको करेक्ट स्टेट सिंबल्स का मिलेगा। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. Right, sir. तो ये 2 नंबर की आयोनिक इक्वेशन हमेशा आती है, या तो ये प्रेसिपिटेशन मेथड में आती है मिक्सिंग में, या तो ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पूछ सकते हैं। इवन कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन जो हमने पढ़ा है उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट they are asking the effect of heat on crystals of green nickel chloride is shown in the equation। आप देख सकते हैं कि निकल क्लोराइड जो है, अगर वो हाइड्रस है, हाइड्रस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो ग्रीन है, और अगर आपने उसको हीट कर दिया है तो वो येलो हो गया। दे आर सेइंग स्टेट द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सॉल्ट सच एज निकल क्लोराइड व्हिच इज कंटेन नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? Anhydrous. Anhydrous. Very good, very good. Describe how the change yellow nickel to chloride back to the green nickel. Adding Because it is visible. You need to add water. Very good. If you add water, so the water of crystallization again add over there in the salt, and then you will have a color change seen। अब ये सवाल इस तरह नहीं आएगा, आपके सवाल आपके पास आ सकता है कॉपर सल्फेट के साथ। So hydrous copper sulfate has blue color. You need to keep remember blue crystals, or anhydrous have white border. You need to keep remember this is the new addition in our syllabus। And cobalt-2 chloride paper is when it is hydrous, so it is pink in color, and when it is anhydrous, it is in blue in color। You need to keep remember the color. Next time they are not going to give you the colors like this, right? Yes, sir. Yes, sir. And this is the last question, and hopefully इसमें हमारे पास मोल्स का क्वेश्चन आ गया है। So magnesium carbonate reacts with hydrochloric acid. 125 centimeter cube of dilute hydrochloric acid is added to excess magnesium carbonate. Volume of carbon dioxide gas produced is 120 centimeter cube। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो गैस का वॉल्यूम दिया गया है, ये है गैस का वॉल्यूम, और ये है कॉन्सेंट्रेशन वाला वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो दे बोथ आर डिफरेंट। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय 24,000, बस इसमें आप नहीं लगा सकते हैं, इसमें आप लगाएंगे कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 वाला। ठीक है ना? तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने जरूरी हैं। पहले मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए वॉल्यूम है 120 डिवाइड बाय 20,000। तो बच्चों क्या आंसर आने वाला है आपके पास? 120 over 24,000। Yes, 0.005 भी बोल सकते हैं आप इसको। Then they are asking about the concentration of hydrochloric acid ना, तो हमारे पास मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, तो अब हमें मोल्स चाहिए किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो हम लगाएंगे रिलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, HCl के चाहिए, तो रिलेशन इन दोनों का लगेगा। इट इज एक्चुअली 2:1 का रेशियो। अभी हमारे पास इसके मोल्स मौजूद हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये गया इधर, ये गया इधर, तो मोल्स कितने आ गए आपके पास? into 2। These are the number of moles of HCl, which is 0.01, right बच्चों? Right, sir. Yes. क्योंकि हमें चाहिए concentration, तो this formula can be used। Number of moles into 1000 divided by the volume in centimeter cube, so we can find out the concentration। So moles हमारे पास आ गए हैं, 1000 आपके पास constant है, volume already given है, so we can multiply 0.1 with 1000 and then divided by 25. So it gives us what? 0.4 mole per decimeter cube. All right, so Yes. Yes. then again, the thing which is going to be asked is the collision theory। ये भी लाजमी सवाल पूछा जाता है। The reaction is repeated at a higher temperature, all other conditions stay the same। Describe how the rate of reaction changes। We know that। बच्चों क्या लिखेंगे इसमें? Rate of So the reaction. kinetic energy would be Kinetic increases, energy. Rate of reaction increases। Rate of reaction increases का एक नंबर मिल जाएगा आपको as the kinetic energy of the particles increases and the chances of frequent collision increases, right? Right, sir. Yes, sir. ये 3 मार्क्स के लिए मैंने आपको लिखवा दिया है, फ्रीक्वेंट कोलिजन वाला भी, लेकिन अभी हमारी ऊपर वाली 2 लाइनें आप लिखेंगे और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपने यही लिखना है हमेशा। ठीक है? Then we are saying the reaction is repeated using a higher concentration of hydrochloric acid. All other conditions stay same. Describe how the rate of reaction changes over here. Again, we know that rate of reaction increases because there would be more crowded area of the particles and the chances of the collision increases, right? Yes, sir. Yes, More sir. crowded area
more crowded area of particles. So the chances of frequent collision increases, hence the rate of reaction increases. Right, बच्चों? Right, sir. Yes, sir, right. Then duraluminum is an alloy of aluminum and magnesium and copper and manganese. Oh my god, 4 elements. State the meaning of the term alloy. Alloy क्या होता है? Alloy is a mixture Sir, of it is the mixture of metal and non-metals. no, not metal. Non-metal की लफ्ज यूज नहीं करेंगे. आप बोलेंगे it is a mixture of metals with another element. Another Sir, element इसमें बोलेंगे. non-metal का word use नहीं कर सकते? Element आ गया ना तो non-metal हो गया वहां पर. Mixture of metals Okay, sir. with another element. Right भाई? ये ज्यादा appropriate रहेगा. सही है? Yes, sir, right. Yes, sir. Then copper is purified by electrolysis using an impure copper anode and pure copper cathode. Construct the ionic equation taking place at cathode. Cathode में कौन सी बड़ी बात है भाई? कॉपर आयंस जा रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे होंगे और कॉपर बन रहा होगा. कॉपर हमेशा इस तरह ही बनेगा कैथोड पर. A metal object can be electroplated with another metal. State one use of electroplating. Electroplating का क्या यूज हो सकता है बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज ये हो सकता है, एक तो आप कभी कभार जैसे सिल्वर स्पून हम बना रहे हैं तो वो रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो सकता है और हार्डर भी कर सकते हैं हम कभी कभार मेटल को या किसी सब्सटेंस को हार्ड करने के लिए हम बना रहे होते हैं. Sir, तो enhanced looks. फॉर हार्डर cover utensils with सरफेस होता है और रेजिस्टेंट टू कोरोजन भी होता है, इसलिए भी हम करते हैं. राइट बच्चों? Right, sir. Yes, sir, right. Any problem to any one of you? No problem, sir. Sir, वो cobalt chloride आपने जो water वाला बताया था, pinch to blue वाला, वो क्वेश्चन दोबारा समझा दें. बेटा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है मैंने आपको एयर और वाटर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, वहां देख सकते हो. शुरू में ही मैंने आपको पढ़ाया था वाटर के अंदर. एक कोबाल्ट क्लोराइड जो पेपर है, इट कैन बी यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर. राइट? तो ये प्रेजेंस ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है. ये खुद जो है आपके पास ब्लू कलर का पेपर होता है जब ये एनहाइड्रस होता है, जब इसने पानी एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ होता. तो ये पानी एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू पिंक हो जाता है. ठीक है? सर इसके लिए Okay, sir. हम ये भी कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की कवरिंग करता है, ये क्या कहते हैं, यूटेंसिल्स के ऊपर, तो मेक देम रेजिस्टेंट. बिल्कुल. आप देखो कोई भी मेटल आप कर सकते हो, एल्युमिनियम कोट कर सकते हो, आप कोई भी दूसरा अलग मेटल कोट कर सकते हो. उससे फायदा क्या होगा? उससे आप अलग अलग यूजेस कर सकते हो ना. जैसे फॉर सपोज मैं कोई ऐसा मेटल कोट करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से हार्डनेस आ जाए, मैं कोई ऐसा मेटल कोट करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से जो है कोरोजन रेजिस्टेंट आ जाए, या मैं कोई ऐसा मेटल कोट करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से खूबसूरती आ जाए. डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं. ठीक है? अच्छा बच्चों, आप देख सकते हो कि अभी हमने 4:05 पे ये पेपर शुरू किया था और हम 4:55 पर इसको कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं. और ये पेपर 85 मार्क्स का था क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन ज्यादा था. ठीक है ना? वो भी हमने सॉल्व किया. तो हमने जस्ट 50 मिनट्स के अंदर 35 बच्चों के साथ और फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ इस पेपर को सॉल्व कर लिया है. और आपके पास है ये पेपर सॉल्व करने के लिए 1 hour and 45 minutes, यानी कि डबल टाइम. ठीक है ना? So in fact, I am a teacher, so I have a more knowledge with you, but I am discussing over here as well with you. I am writing over here as well. I am answering your question as well with you. So I am doing more things over here during the paper solution. ठीक है ना? तो आपको तो सिर्फ पेपर सॉल्व करना होगा, आपको तो किसी को आंसर भी नहीं देना होगा. तो आप आराम से 1 hour and 45 minutes में ये पेपर कर सकते होगे, जो कि 80 मार्क्स का होगा. ठीक है ना? तो आप वो आराम से कर सकते होगे. इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से करोगे भी. और सबसे ज्यादा पेपर 2 के ऊपर वर्कआउट करना है आपने. उसका रीजन ये है बच्चों क्योंकि इसकी वेटेज पेपर में 50% होती है. तो आई जस्ट वांट कि आप सब इसको अच्छे से वर्कआउट करें, इसको अच्छे से लर्न करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लर्न करें. इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में हम रिवीजन भी करने वाले हैं. अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम कुछ बातें भी लिखने वाले हैं और बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. कैटलिस्ट के बारे में, कलर्स के बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग अभी करने वाले हैं. तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे. तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वो नोट्स भी आप याद कर सकते होंगे. लेकिन खुद से भी कोशिश करें, चीजों को रिवाइज करें. पेपर 2 के लिए खासतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को याद करें ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकें और आपका ग्रेड सबसे अच्छा
हो सके इस पेपर में। All right, every one of you. So take care of yourself. We'll see you again in the next class. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. That was good.